Hello everyone, welcome back in our new chapter election and representation. So without wasting a time, let's start. Now what the exactly meaning of election and representation is. Guys, election is a formal group decision making process by which a population chooses an individual to hold public office. Okay, where elect means to select or make a decisions, and so sometimes other forms of ballot such as referendum are referred to as election, especially in United States of America. Okay, if we discuss about the election in the Republic of India, which includes elections for the members of the parliament in Lok Sabha, members of state legislative assemblies, and also assemblies elections to some of the union territories like Delhi, okay, which is the capital of our country, and members of state legislative councils, and members in village panchayats or city corporation councils. Okay, and representation means delegation. Okay, guys, have you ever played chess? Then what would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than two and a half squares? Or what would happen if in a game of cricket there were no umpires? In any sport, we need to follow certain rules. Okay, so change the rules and the outcome of the game would be very different. Similarly, a game needs an important umpire whose decision is accepted by all the players. Okay, and the rules and the umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. What is rule of a game is also true of elections. Okay, no doubt. And there are different rules or systems of conducting elections. The outcome of the elections depend on the rules we have adopted. We need some machinery to conduct the elections in an impartial manner, since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin. This cannot be left to any government. That is why these basic decisions about elections are different down in the constitution of a democratic country. गाइस देखिए, आपने चेस तो खेला ही होगा, खेला है कि नहीं? तो आपने देखा होगा कि चेस के अंदर जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, वो हमेशा ढाई कदम चाल चलता है। बट मान लीजिए कि वो ढाई कदम चलने के बजाय वो सीधा चलने लगे, तो बताइए क्या होगा? या क्रिकेट के गेम में आप देखिए, मान लीजिए अगर अंपायर ना हो, तो क्या होगा फिर? हर गेम के अंदर हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दें तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो रिज़ल्ट आएगा उस गेम का वो भी बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि हर गेम में एक अंपायर तो होना ही चाहिए जो डिसीजंस दे। ठीक है, और उसके डिसीजंस सभी प्लेयर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले ही हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और अंपायर्स के बारे में आपस में एक तरह से सहमति बनानी पड़ेगी, जो कि ज़रूरी है। जिस तरह से गेम्स के बारे में ट्रुथ जो आपको ज़रूरी है बताना, उसी तरह से इलेक्शंस के बारे में भी जो ट्रुथ है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, नो डाउट। इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के या कैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, और इसके लिए हमें कुछ मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन कराने के लिए, जो बिल्कुल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इलेक्शंस करवाए। ये दोनों ही डिसीजंस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का गेम शुरू होने से पहले ही लिए जाना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा डिसीजन? पहला डिसीजन है कि हमें किस तरह के या कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा इलेक्शन का रिजल्ट। और सेकंड डिसीजन है कि हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के किस तरह से हम बिना किसी भेदभाव के इलेक्शंस करवा सकें, उसके लिए हमें एक मशीनरी भी चाहिए। ठीक है, तो वो मशीनरी कैसे हो? मतलब हमें एक ऐसी मशीनरी चाहिए जो इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवा सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये दोनों ही डिसीजंस इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स का गेम स्टार्ट होने से पहले ही लिए जाने चाहिए। हम ये गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते ये चीज़, एंड दैट इज़ वाई दीज बेसिक डिसीजंस अबाउट इलेक्शंस आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नो डाउट।
So, in this chapter, we shall study the constitutional provisions regarding elections and representations. We shall focus on the importance of the method of elections chosen in our constitution and the implications of the constitutional provisions regarding impartial machinery for conducting elections. And we shall also look at some suggestions for amending the constitutional provisions in this respect. ओके, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन से होते हैं। फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है सिस्टम ऑफ इलेक्शन के, वो क्या है और हमने कौन से फीचर्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट किया है इलेक्शन के लिए हमारे देश के अंदर। एंड थर्ड हम ये पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस जो है प्रोविजंस का फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए वो क्या है, इलेक्शंस के अंदर और प्रॉपर रिफॉर्म्स या सुधार कैसे लाया जा सकता है, ये पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। गाइस, इन दिस चैप्टर you have to ask yourself two simple questions about elections and democracy. First, can we have democracy without holding elections? And second question is, can we hold elections without having democracy? Guys, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने आप से खुद से इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड टू क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, मतलब क्या है इसका, क्या बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस of the necessity of representation in a large democracy. All citizens cannot take direct part in making every decisions. Therefore, representatives are elected by the people. This is how elections become important. Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last elections. Elections have today become the most visible symbols of the democratic process. Guys, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, मतलब क्या बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक बड़े डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। कोई भी डिसीजंस लेने में सभी सिटीजन्स हर तरह के डिसीजन में पार्ट नहीं ले सकते, इसलिए जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसीलिए हमारे कंट्री में, इवन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम जब भी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो हमें तुरंत लास्ट इलेक्शंस की याद तो आ ही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो इलेक्शंस है आज के दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और विजिबल सिंबल माना गया है। And we often distinguish between direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decisions making, okay, and in the running of the government. The ancient city states in Greece were considered examples of different democracy. Many would consider local governments, especially Gram Sabhas, to the closest example of direct democracy. But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. That is why rules by the people usually means rule by people's representatives. जनरली हम डिस्टिंग्विश करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, और रनिंग ऑफ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो रन कर रही है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम के अंदर ग्रीस के जो सिटीज़ थे, जो स्टेट्स थे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स कंसिडर किए गए हैं। बहुत सारे लोग तो लोकल गवर्नमेंट को भी कंसिडर किए करते हैं, स्पेशली ग्राम सभास, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लोजेस्ट एग्जाम्पल माना गया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। बट जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिस में नहीं लाई जाती है, जब खास तौर पे लैक्स और करोड्स ऑफ पीपल जो हैं डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए रूल बाय द पीपल का यूजुअली मीनिंग क्या है, वो यही है कि रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। हम कहते भी कि रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी के अंदर हम बोलते भी हैं, जिसका मतलब है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है कि रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
जिनको सिटीजन्स ने वोट दिया है, एक्चुअल में रूल वो करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? सिटीजन्स के थ्रू करते हैं। देन इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु in turn are actively involved in governing and administering the country. The method followed to choose these representatives is referred to as an election. Thus, the elections have a limited role in taking major decisions and in running the administration. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their elected representatives. In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives become very important. सो बताया गया है कि इस तरह के अरेंजमेंट्स में जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कंट्री के अंदर गवर्न करने में, गवर्नमेंट को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। और जो मेथड यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने का, उसी मेथड को आप क्या कहते हैं? इलेक्शंस बोलते हैं। सो कहने का मतलब है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में सिटीजन्स का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। सिटीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी पॉलिसीज़ को बनाने में, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। ऐसे भाई वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ना, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया है वो रिप्रेजेंटेटिव्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं गवर्निंग के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दिस आई एम सेइंग कि जो सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। और यू कैन से दैट दे आर इन्वॉल्व इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इस तरह के अरेंजमेंट में जो जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही लेते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्ट होने का जो प्रोसेस है या जो ये वर्क है, ये टास्क है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि यही तो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में डायरेक्टली, ठीक है। और इन लोगों को इलेक्ट करते हैं सिटीजन्स जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सो कहने का मतलब है कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस तो बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो बहुत कंपलसरी है ये। नाउ द सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. They do so by holding elections in such a way that it does not threaten their rule. Can you think of some examples of such non-democratic elections? What do you think would distinguish a democratic from a non-democratic elections? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? And this is where constitution comes in. The constitution of a democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislatures, and these basic rules are usually about who is eligible to vote, who is eligible to contest, who is to supervise elections, how do the voters choose their representatives, how are the voters to be counted and representatives elected. देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हो सकते हैं? सो कहने का मतलब है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें इस बात को याद दिलाता है कि सभी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं। इनफैक्ट जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि वो डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, वो डेमोक्रेसी के फेवर में। इसीलिए वो अपने कंट्रीज़ में इलेक्शंस भी इस तरीके से करवाते हैं कि उनके रूलिंग को कोई खतरा ना हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप ऐसे कुछ नॉन डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस के एग्जांपल्स दे सकते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से बिल्कुल अलग करती है? ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी वे के अंदर इलेक्शंस हो सकें, या आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस हो सकें? ऐसा क्या करना चाहिए हमें? सो ये सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपके सामने एज अ चैलेंज है, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ बेसिक रूल्स जरूर बनाता है उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉज बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो लेजिस्लेचर्स को दी गई है, ठीक है। जैसे कि बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट, ऐसे कौन से सिटीजन्स हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, एलिजिबल हैं कहने का मतलब। देन सेकेंड, हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, मतलब कौन इलेक्शंस लड़ने के लिए कैपेबल है या एलिजिबल है। देन थर्ड इज हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस की कौन देख रेख करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा इलेक्शंस को। देन हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज करेंगे, कैसे चुनेंगे। देन हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, इलेक्शंस में कहने का मतलब जो भी वोट्स दिए गए सिटीजन्स के थ्रू वो वोट्स कैसे काउंट किए जाएंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इलेक्शंस कैसे होगा, हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड कहने का मतलब। So, like most democratic constitutions, the Constitution of India answers all these questions. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and can thus be called democratic. The last two questions are about ensuring a fair representations. So, in this chapter, we will consider both these aspects of the constitutional provisions about the elections. कहने का मतलब है कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनकी तरह सेम हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, जितने भी हमने अभी तक ये क्वेश्चंस पढ़े, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर 100% प्रॉपर तरीके से देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले जो थ्री क्वेश्चंस हैं, हमारे फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं, उनका क्या एम है। थ्री क्वेश्चंस एंश्योर ये करते हैं कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए और फ्रीली होने चाहिए, हम कह सके कि हाँ डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस हुए हैं। और लास्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि फेयर कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, फेयर डेलीगेशन होना चाहिए, फेयर तरीके से सामने होना चाहिए सब कुछ, फेयर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फेयर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कुछ हिडन नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। और इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्शंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, और सेकंड फेयर रिप्रेजेंटेशंस। इन दोनों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो इलेक्शंस के बारे में हमें बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू गाइस।